किताब पे दूसरी किताब को पढ़ते हैं, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। या सो इसमें हम एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे आज, जिसमें हम मिरेकल्स देख रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के। और ये हमको पता है सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ गुड थिंग्स करता है। लाइफ वर्ड है हैप्पीनेस, हेल्थ, ग्रोथ, सक्सेस, हार्मनी, पीस, जॉय, लव, है ना। बस वही काम होता है सबकॉन्शियस माइंड का। और कल हमने पढ़ा था ह्यूमन माइंड जो है वो हिंडर करता है नेचुरल फ्लो को। नेचुरल फ्लो टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस एंड हीलिंग होता है। बट ह्यूमन माइंड में जब वरी, एंगर, फियर, रिजेंटमेंट, जेलसी, हेट्रेड ये सब आने लग जाती है तो वो नेचुरल प्रोग्रेशन को हिंडर करता है। तो इसीलिए अपने आप को डेलिबरेटली उस जोन में लाना जिसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी। वर्ड्स में भी पावर होती है, तो वो वर्ड्स ऐसे चूज कर लो जब लो फील कर रहे हो तो वर्ड्स में पावर की वजह से वो अपने आप एक्सपेंशन होगी हमारी, मतलब हम दोबारा से लाइफ वर्ड फ्लो में जाएंगे। यस, भावना इज रीडिंग फॉर अस, भावना सेठी। Ma'am, today is Bhavna's birthday. ओके, सो विशिंग यू भावना वेरी हैप्पी बर्थडे। And ma'am, she's Thank the first you. time reader, ma'am. She's very excited. अच्छा, क्या बात है भावना। Congratulations firstly for debuting your reading on the session, Thank you. and Thank you you. an awesome birthday, a great life. This Thank will you be the so best year much. of your I life. wanted all your blessings. That's why it's read. I Anyhow, wanted to read you would today. have got it. Shall I start? Yeah, please do. Thank you. Pott's disease cured. In the Naturalist magazine of March 1917, there appears an article about a boy suffering from Pott's disease or tuberculosis of the spine who had a remarkable healing. His name was Frederick Elias Andrews of Indianapolis, now minister of Unity School of Christianity, Kansas City, Missouri. His physician pronounced him incurable. He began to pray, and from a crooked, twisted cripple going about on hands and knees, he became a strong, straight, well formed man. He created his own affirmations, mentally absorbing the qualities he needed. He affirmed over and over again many times a day, I'm whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. He preserved that and said that this prayer was the last utterance on Bhavna, his. he persevered. He Like, persevered and said that his this prayer was the last utterance on his lips at the night and the first in the morning. He prayed for others also by sending out thoughts of love and health. This attitude of mind and way of the prayer returned to him multiplied many times. His faith and perseverance paid off with big dividends. When thoughts of fear, anger, jealousy, or envy drew his attention, he would immediately start his counteracting force of affirmation by going in his mind. His subconscious mind responded according to the nature of his habitual thinking. This is the meaning or the statement in the Bible, Go thy way, thy faith hath made thee world. Mark 10:52. How make thee whole, make thee whole, made thee whole, whole. heal, complete. That is okay. So this is a paragraph जो पूरा इतना सुंदर, ये वाला टॉपिक है द पॉट्स डिजीज। ये एक तरह का टीबी होता है जो नर्वस सिस्टम में होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड में। और वो उस जमाने की बात है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आज से 100 साल पहले थे, वो तब क्रिएट कर रहे थे, बट ये किताब काफी बाद में लिखी है उन्होंने। उस वक्त टीबी होना मतलब बहुत इनक्योरेबल, जो भी वो भी स्पाइनल कॉर्ड की जो टीबी होती थी, तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि तुम बहुत इनक्योरेबल रहोगे। और उस टीबी की वजह से उनके हाथ पैर पूरे वो से टेढ़े हो जाते हैं ना, इस तरह हो गए थे।
और फिर इनको ये वाला जो आर्टिकल है ये पब्लिश भी हुआ था मैगजीन में, क्योंकि बहुत ही मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल से पॉसिबल वाली स्टोरी थी, जहां पे डॉक्टर ने सब गिव अप कर दिया था कि तुम अब ठीक नहीं हो सकते, इनक्योरेबल बीमारी है ये। लेकिन इस बच्चे ने, इस बॉय ने प्रे करना शुरू किया, और जो उनकी बिल्कुल टेढ़ी सी बॉडी हो गई थी ना, क्रूकेड एंड ट्विस्टेड लिखा हुआ है, सो क्रूकेड एंड ट्विस्टेड बॉडी, इनके सारे हैंड्स, इनके नी सब खराब हो गए थे, उससे ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और वेल फॉर्म्ड मैन बन गए, इस तरह से। और किस तरह से इन्होंने किया, क्या प्रैक्टिसेस की, ये इसमें बहुत अच्छे से बताया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो उस बच्चे ने सुबह और सोने के पहले, मतलब सुबह उठते ही और रात को सोने के पहले मैनी टाइम्स ये बोला, आई एम होल, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adjectives हैं इसमें। 7 adjectives बोले, I'm whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. So ये लगातार बोल बोल के, तो ही परसिवियर्ड, ये करते रहे इस प्रेयर को रात को सोने के पहले एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जो इसमें लिखा हुआ है एट नाइट एंड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और नॉट जस्ट दिस, उनको ये पता था गिव भी करना होता है, ठीक है। तो उन्होंने गिव करना शुरू किया। व्हाट वाज ही गिविंग? सेंडिंग थॉट्स ऑफ लव एंड हेल्थ टू अदर पीपल, जो बाकी के लोग थे, है ना, जो भी उनके इंटरेक्शन में, जिनके बारे में वो सोचते थे, उनको वो ब्लेसिंग्स भेजते थे लगातार, ब्लेसिंग्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ। इस एटीट्यूड जो होता है, कहते हैं ना कि जो एनर्जी आप किसी और की तरफ रेडिएट कर रहे हो, वो एनर्जी हमेशा आपके पास मल्टीप्लाई होके घूम के आती है वापस। तो ये जो लव और हेल्थ की ब्लेसिंग वो लोगों को भेज रहे थे, दैट मल्टीप्लाई होके उनकी जिंदगी में वापस आई, एंड उन्होंने उसकी वजह से ये जो इनकी एफर्मेशन थी और ये जो ब्लेसिंग लोगों को भेजते थे, इसकी वजह से उनकी जिंदगी में उनको खूब डिविडेंड्स मिले खूब प्रॉफिट मिला, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। और उन्होंने, मतलब इसमें लिखा हुआ है, व्हेन थॉट्स ऑफ फियर, एंगर, जेलसी और एनवी ड्रू हिज अटेंशन, ही वुड इमीडिएटली स्टार्टेड काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ एफर्मेशन। जैसे ही उनके मन में ये सारी नेगेटिव चीज आती थी, है ना, होता है 24 घंटे आप पॉजिटिव जोन में नहीं रह सकते, ह्यूमन माइंड है, मंकी माइंड होता है, तो वो ड्रिफ्ट करता है बार बार। ह्यूमन माइंड को बड़ा पसंद है नेगेटिव की तरफ जाना, है ना, क्योंकि हम वायर्ड ही ऐसे होते हैं। क्योंकि जब हम धरती पे आए थे पहली बार, जब बंदर के रूप में आए थे, फिर जब इंसान बने, तो उस वक्त हमारे बहुत स्ट्रांग मन में फियर ऑफ फॉलिंग और फियर ऑफ साउंड था, वो हमारा प्री इंस्टॉल होके आया था। तो उस फियर को हमने, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन थे, वो सिर्फ इन चीजों के लिए थे। जब इंसान बनाया था भगवान ने, तो यही चीज दी थी, अपनी सेफ्टी, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ये दोनों चीजें दी थी, फियर ऑफ साउंड एंड फियर ऑफ फॉलिंग, है ना। लेकिन इसको कन्वर्ट करके हमने जिंदगी में अलग अलग तरह के स्ट्रेस कर लिए, पाल लिए रादर, है ना, वी हैव मेड देम पेट्स हमारे जो फियर होते हैं, फियर ऑफ मनी, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप्स, फियर ऑफ दिस, फियर ऑफ दैट, तो ये अब हमारे हमारे अंदर इंस्टॉल हो गए, जो ये गलत तरह के थे, क्योंकि फियर तो दो ही तरह के होते हैं, है ना। फियर वर्ड इंसान में अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के रूप में हम देखें, तो ये दो ही तरह के फियर होते हैं, साउंड एंड फॉलिंग। तो इस तरह से, और वो भी हमारे लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, बट ऐसा इसीलिए हम बार बार ग्रेविटेट करते हैं नेगेटिव चीजों की तरफ, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे ही बना हुआ है, सो दैट वे। तो इस लड़के के मन में भी जब भी ऐसी चीजें आती थी, एंगर होता था या जेलसी कुछ होती थी, तो वो फटाफट ये वाली जो एफर्मेशन है, ये इसको रिपीट करने लग जाता था, है ना, अपने माइंड को नेगेटिव लेके ही नहीं जाता था। और इस तरह ये 100% हील हुआ बिकॉज ऑफ हिज हैबिचुअल थिंकिंग, यानी इनकी इस तरह के थॉट को उसने हैबिट बना ली थी, है ना, हैबिचुअल थिंकिंग की वजह से। तो फिर बाइबल का ये स्टेटमेंट है, गो दाय वे, द फेथ हैज मेड हिम होल, दी मतलब यू, है ना, कि फेथ ने आपको होल कर दिया है। तो आप बिल्कुल लाइफ वर्ड रास्ते में गए हो, और जो आपका फेथ है, ये बार बार वो रिपीट इसीलिए कर रहा था ना, बिकॉज उसको ये पता था दैट इफ आई कीप रिपीटिंग इट आई विल टोटली हील, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह उस फेथ के कारण ये 100% हील हो गया, कॉन्ट्ररी टू व्हाट डॉक्टर्स से। डॉक्टर्स ने बोला था आपकी डिजीज इनक्योरेबल है, आप कभी नहीं ठीक हो सकते, बिकॉज, और उस जमाने में स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस, जिसको पॉट्स डिजीज बोलते थे, वो एक्चुअली ठीक नहीं होती थी,
है ना, बट सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताएं तो अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। How faith in your subconscious power makes you whole. A young man who came to my lectures on on the healing power of the subconscious mind had severe eye trouble, which his doctor said necessitated an operation. He said to himself, "My subconscious made my eyes and it can heal me." Each night, as he went to sleep, he entered into a drowsy, meditative state, the condition akin to sleep. His attention was immobilized and focused on the eye doctor. He imagined the doctor was in front of him, and he plainly heard or imagined he heard the doctor saying to him, "A miracle has happened." He heard this over and over every night for perhaps 5 minutes or so before going to sleep. At the end of 3 weeks, he again went to the ophthalmologist who had previously examined his eyes, and the physician said to this man, "This is a miracle." What happened? This man impressed his subconscious mind using the doctor as an instrument or a means of convincing it or conveying the idea. Through repetition, faith, expectancy, he impregnated his subconscious mind. His subconscious mind made his eyes within it was the perfect pattern, and immediately it proceeded to heal the eye. This is another example of faith in the healing power of your subconscious can make you whole. या सो अनदर एग्जाम्पल दूसरे तरीके से इस इंसान ने किया। इनकी आंख में बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, तो इनको ये पता था, अगेन ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के, उस वक्त वो रेडियो पे ये लेक्चर्स होते थे बिकॉज टेलीविजन वगैरह तो था नहीं, ये सब 1940s 50s की बात है। तो उस वक्त इस पर्सन को पता था इनकी आंख में प्रॉब्लम हुई है, एंड देन डॉक्टर ने बोला कि देखो सर्जरी बहुत नेसेसरी है तुम्हारे लिए, सर्जरी करके देखते हैं अगर ठीक हो जाता है तो इस पर्सन को पता था कि भगवान ने आंखें बनाई है तो भगवान को उनको ठीक करना भी आता है ना। तो इस पर्सन ने रोज रात को 5 मिनट के लिए 3 हफ्ते तक, 5 मिनट के लिए 3 हफ्ते तक सोने के पहले स्लीपी ड्राउजी स्टेट यानी कि अल्फा स्टेट में अपने आप को बोलना शुरू किया, मतलब ये इमेजिन किया विजुअलाइजेशन में कि इनका जो डॉक्टर, इनका जो आई वाला डॉक्टर था जिनके पास ये लगातार जाते थे, जिन्होंने इनको कहा था कि सर्जरी करना जरूरी है, उन्होंने उस डॉक्टर को इमेजिन किया कि वो इनको बोल रहा है अ मिरेकल हैज हैपेंड, और वो 5 मिनट लगातार ये विजुअलाइज करता था कि वो डॉक्टर बोलता था मिरेकल हैज हैपेंड, जब आंखों को ऑब्जर्व करने के बाद। और उसके बाद 3 हफ्ते तक उसने ये किया, और जब 3 हफ्ते के बाद वो अपने ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास गया, आई डॉक्टर जो होते हैं, आई स्पेशलिस्ट, तो डॉक्टर ने एग्जैक्टली ये बोला दैट अ मिरेकल हैज हैपेंड। सो इट वाज सो अमेजिंग दैट एग्जैक्टली वही चीज विजुअलाइज कर करके इस तरह से उन्होंने अपनी आंखें ठीक कर ली पूरी तरह से, बिकॉज डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है सबकॉन्शियस माइंड आपको होल हील्ड एंड कंप्लीट बनाता है, बट देन देर इज अ प्रोसेस, एक तरीका होता है अपने आप को सबकॉन्शियस में कोई भी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट या कोई प्रेयर को इम्प्रेग्नेट करने का। अगर हमको बहुत अच्छे से कोई स्टेटमेंट सीमेंट करना है अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमको रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा, वो बहुत ऐसे, मतलब ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना, बीटा स्टेट में रहेंगे। जब हम गहरी लंबी सांसें लेके अपने आप को स्लीपी ड्राउजी स्टेट अकिन टू स्लीप, जिसको सैट्स बोलते हैं, स्टेट अकिन टू स्लीप, जैसे आप बहुत ज्यादा टोटली रिलैक्स्ड हो, आपका दिमाग एकदम शांत है, कोई थॉट नहीं आ रहा, उसके बाद आप कोई भी चीज पकड़ के, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस पकड़ के आप रिपीट करो जो आपकी डिजायर है, और वो आप जिंदगी में उसको बहुत जल्दी, इनके सारे जो रिजल्ट्स थे, इफ यू ऑब्जर्व, दे हैव ऑल बीन कमिंग इन 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks,
मतलब पता नहीं कितने जन्मों का कर्मा वो लेके आ रहे होंगे कि आंखें खराब थी उसकी, उसको दिक्कत आ रही थी, और उसको जो भी था, है ना, जिसको स्पाइन का टीबी था। तो इस तरह पता नहीं कितने जन्मों का कर्मा था वो, कि जो मैनिफेस्ट हो रहा था उनकी जिंदगी में। लेकिन उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी इंफॉर्मेशन को डिलीट करके नई इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ली इस प्रोसेस से, अल्फा स्टेट में, स्लीपी ड्राउजी स्टेट में अपने आप को, जो गहरी लंबी सांसें लेके हो जाता है बहुत आराम से, है ना, और उसके बाद लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करके वो सेंटेंस, वो शब्द जो भी बोलना है। और बहुत सारे इसमें एफर्मेशन है, वो तो बहुत सिंपल सा था। आप में से जिन लोगों को मनी का है, आई गिव थैंक्स फॉर माई वेल्थ, है ना, फॉर ऑल माई वेल्थ, आई गिव थैंक्स फॉर ऑल माई वेल्थ। कितना छोटा सा सेंटेंस है, आपको 100 बार लिखना हो, आपको बोलना हो, आपको जो करना हो, आपको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में अपने सबकॉन्शियस में इम्प्रेग्नेट करना हो उसको, तो इस तरह से आई एम होल हील कंप्लीट परफेक्ट, सो अगर यही बोलना है तो ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसको रिपीटिशन के साथ स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाके अपने सबकॉन्शियस में सीमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। Pointers to review. Your subconscious is the builder of your body and is on the job 24 hours a day. You interfere with its life giving patterns by negative thinking. Charge your subconscious with the task of evolving an answer to any problem prior to sleep, and it will answer you. Watch your thoughts. Every thought accepted as true is sent by your brain to your solar plexus, your abdominal brain, and is brought into your world as a reality. Know that you can remake yourself by giving a new blueprint to your subconscious mind. The tendency of your subconscious is always lifeward. Your job is with your conscious mind. Feed your subconscious mind with premises with all with which are true. Your subconscious is always reproducing according to your habitual mental patterns. You build a new body every 11 months. Change your body by changing your thoughts and keeping them changed. It is normal to be healthy, it's abnormal to be ill. There is within the innate principle of harmony. Thoughts of jealousy, fear, worry, and anxiety tear down and destroy your nerves and glands, bringing about mental and physical disease of all kinds. When you affirm consciously and feel as true will be made manifest in your mind, body, and affairs, affirm the good and enter into the joy of living. So thank you, Bhavna, the birthday girl, and wishing you a very happy birthday from the entire team of Magics and Miracles, from all Thank our you. channels, all our portals. There's Thank so you. many. Thank you. Thank you. But concentrated wishes and blessings on you of happiness, growth, success, love, excellent health, and that Thank you. body becomes younger and younger every day. Thank you so much. You made my day. You made my year. You made my years. I made your year, yeah. And the next year I'll again wish you for more. Thank you. ओके, सो ये जो पॉइंटर्स हैं इसमें सारा डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने याद दिलाया है कि सबकॉन्शियस माइंड होल हील कंप्लीट मतलब कि लाइफ वर्ड होता है। हमारे थॉट्स इंटरफेयर करते हैं, तो अपने थॉट्स को चेंज करके कंट्रोल करना हमको सीखना है। यही लाइफ की जर्नी होती है। और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही है अभी इस वक्त, आप उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कन्विक्शन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हमको बताया है। फिर उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थॉट्स है वो सब हमारे सोलर प्लेक्सेस में, यानी कि हमारे मणिपुर चक्र में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं और हमको प्रॉब्लम्स देंगे। उनको हटाओ, ऐसे मत सोचो। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए इमिजिएटली अपने थॉट को चेंज कर दो, बिकॉज पावर ऑफ द वर्ड्स तो हमारे पास है ना। सो अपने शब्दों को इस तरह से यूज करना, हैप्पीनेस, होल हील, हार्मोनियस बॉडी, रोबस्ट हेल्थ, तो इस तरह से हम करते रहते हैं लगातार, तो वो हमको करना जरूरी है। तो वो उन्होंने समझाया है। फिर ऑफ कोर्स लाइक उन्होंने एफर्मेशन करने का तरीका बताया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेग्नेट कर दो, सीमेंट कर दो, वो वाली चीज सॉलिड कर दो,
है ना, सॉलिडिफाई कर लो, लेकिन इन सब चीजों के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना। आई थिंक हम कंसिस्टेंसी से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। हमारी मैड हाउस की तरह लाइफ अगर हम रखेंगे तो हम ये सब अचीव नहीं, ये पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा हमको, वाओ आई कैन ऑल्सो डू दिस, और जहां पे एक्शन पार्ट आता है वहां पे वी गो मिसिंग। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी होती है ना। किसी भी चीज को एक लाइफ का रूटीन हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड दिनचर्या और ऋतुचर्या, इजंट इट। ये चीज हमने पढ़ा है कि जब दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से ही सब होता है, जब दिनचर्या ही टॉपसी टर्वी है तो सब गड़बड़ होगा, है ना। जैसे रोज अगर हर दूसरे दिन मैं बोलने लग जाऊं कि और मैं 6 AM सेशन नहीं ले सकती, या मैं 11 AM नहीं ले सकती, या मैं, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। उनके साथ कंसिस्टेंसी किसी भी मतलब कोई भी चीज के लिए, चाहे ये इम्प्रेग्नेशन के लिए इन लोगों ने डिलिजेंटली किया है, बैठ बैठ के लगातार 3 हफ्ते 10 मिनट निकालना, सुबह 10 मिनट शाम को निकालना, ये कंसिस्टेंसी से आपको बॉडी में भी अगर मसल्स अपने इंक्रीज करने हैं तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए वर्कआउट में, है ना। अगर नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जिंदगी तो यही है, जिंदगी भागा दौड़ी है ही नहीं, जिंदगी यही है बस। और ये सारी प्रैक्टिसेस के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना है। ऑफ कोर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारे पास टाइम होता ही है, तो उस पे वर्क जब हम करेंगे कंसिस्टेंसी पे, तो हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी अपने आप से। आप देखना कि वो मेरे सारे अफर्मेशन जो मैं बोलती हूँ ना, वो मेरी जिंदगी है आज की तारीख में। मतलब कोई भी चीज ऐसी होती है तो मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि अरे ये तो ये वाला एफर्मेशन है, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। कल मेरे पास इतना ज्यादा काम था, ऑफ कोर्स आई टुक द MMBG सेशन 11 बजे का, उसके बाद आई हैड सर्टेन थिंग्स टू डू। मैंने इतना काम किया, तो मैं शालिनी से जब शाम को हम बात करते ही है मोस्टली, कि पूरे दिन भर में क्या है क्या नहीं है कैसा चल रहा है, तो मैं यही बता रही थी, मैंने कहा आज मैंने इतना सारा काम किया है, मुझे इतना प्रोडक्टिव लग रहा था, और इतनी सारी प्रैक्टिसेस करी है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी थी सुबह, जबकि मैं बहुत मतलब 4-5 दिन के बाद मैं घर आई थी वापस। तो जब आप पहाड़ों से आते हो तो कितने कपड़े लिए हो, तो इतने सारे वुलन्स, ये कैप मफलर ये वो, इतने सारे, और पूरा उसको सॉर्ट करके सारी एफर्मेशन सारी रिटन प्रैक्टिसेस, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, दोनों सेशन बहुत अच्छे से लिए। कैसे भी मैं अगर मैं आपको कमेंट कर दूंगी कि मैं 4 बजे का सेशन, सपोज कोई भी सेशन लेना हो, दैट 4 o'clock आई विल टेक इट, नो मैटर वॉट, अपने आप प्रेयर करके उसको उसको वो करके लाना। वाइल एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन एट वर्क, मतलब चरम सीमा वाला सक्सेसफुल पर्सन एट वर्क, मतलब उसमें मेरा कोई मेडल नहीं होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दैट वन एस्पेक्ट, फर्स्टली दैट मैं हमेशा अपने आप को अबव द वाटर रखती हूँ, मतलब इन अ गुड जोन। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आई वर्क फॉर अ बिग कॉर्पोरेट हाउस, इनफैक्ट आई हेड इट, है ना। सो इट इज नॉट बहुत मैन पावर को डील करना, अलग अलग तरह के लोगों के इमोशंस को डील करना, तो ऐसी चीजें होती है, बट आई ऑलवेज कीप माई हेड अबव द वाटर ऑलवेज। और दूसरा ऑफ कोर्स माई कंसिस्टेंसी इज वन थिंग विच रिवॉर्ड्स। तो अगर वो कर लिया, अपने आप को चॉइस, प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने आप को चॉइस दे देते हो कि मैं ये करूं कि मैं ये ना करूं, तो मैं वो चॉइस ही नहीं देती ना। अगर मुझे 4 बजे अवेलेबल होना है किसी ए पर्टिकुलर चीज के लिए तो मैं अवेलेबल होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आप को चॉइस ही नहीं दी है, वो मैंने सुबह ही लिख दिया है कि 4 बजे मैं अपने आप को अवेलेबल रखूंगी। उसके लिए मुझे बहुत चीजों के लिए नो बोलना पड़ता है, बट आई जस्ट डोंट केयर, हाउ डज इट मैटर, सिंप्लीफाई लाइफ, है ना। आई डोंट केयर इफ आई हैव टू से नो, आई हैव टू से नो, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बनना पड़ता है हमको अपने आप को ऐसा, नहीं तो हम मैड हाउस में ही रहेंगे जिंदगी भर। ये पढ़ना के बाद आप इसको 1 हफ्ता अप्लाई कर लो, अपने आप लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। ये अप्लाई भी करना पड़ता है, ऐसा हमको किताबें पढ़नी नहीं होती है। और कल से बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर इसमें शुरू हो रहा है, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, सो वी ऑल वांट रिजल्ट्स। तो आपसे हर जगह ही सब कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, है ना। और कंसिस्टेंसी का मतलब बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि कोई चीज आप 108 टाइम्स बोल रहे हो तो आप कौन से एफर्मेशन लो कौन से नहीं लो। जैसे हमने जब द गेम ऑफ लाइफ पढ़ी थी तो इट वाज फुल ऑफ एफर्मेशन, तो उसमें से मैंने अपने 5 ही पिक किए ना जो मैं कर रही हूँ, जो मुझसे रेजोनेट करते हैं। आपके एफर्मेशन हो सकता है वो नहीं हो, बट वो मेरे हैं,
राइट? तो हम सब इस किताब में से भी अभी तक बहुत सारे एफर्मेशंस आए, हेल्थ के हैं, मनी के हैं, वेल्थ के हैं, सक्सेस के हैं, सबके हैं। आपको जो रेजोनेट करता है, जो करने वाले होते हैं ना, उनको सवाल नहीं पूछना पड़ता, वो पट अपना वो उठाते हैं कि ये मेरे काम की चीज है, और वो अपना अप्लाई करने में लग जाते हैं। वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते उधर उधर, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करना है वैसे करना है। उनको पता है, उनका एप्लीकेशन पार्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, वो ग्रास्प कर लिया, पढ़ लिया, फटाफट नोट किया, और वो निकल के दे विल अप्लाई इट इन देयर लाइफ, और फाइनली दे विल शेयर दैट ये मेरा रिजल्ट है, ये मैंने ऐसे किया और ऐसे किया, है ना? इट इज लाइक दैट। सो बी दैट डिलिजेंट पर्सन। अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करो, वैसे भी लाइफ में, है ना? डोंट अलाउ योर सेल्फ टू गेट swayed in doing something which is sucking up your time and wasting your energy and all that. So be a little more, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, अगर आप उनका रूटीन देखो, मैं टोनी रॉबिन्स की लाइफ देखती हूँ, गाड़ी में जाते हैं वो होटल से निकल के, उनका कुछ सो गाड़ी में वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठ के पूरा वो देख रहे होते हैं, खूब सारे पोथे पुराण खोल के, फाइलें खोल के, कि हम इस चीज को टैप करेंगे, ये कितनी देर का ये सेशन है, क्या है, और उनका आज है, उनका कल फिर से होगा कहीं और, किसी और देश में, है ना? बट इतने सुपर ऑर्गेनाइज्ड हैं वो, बहुत सुपर ऑर्गेनाइज्ड हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट 10 मिलियन लोगों का पेट भरते हैं वो रोज, पैसे दे के रोज, और उनके पास क्रॉस कंट्री ट्रैवल रोज होते हैं, है ना? बट बिल्कुल टाइम से उठना, टाइम से सोना, अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करना। आप जितने भी इन सब जो ग्रेट लोग हैं, इनका आप देखोगे, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देमसेल्व्स, okay, because that is the only thing that will take you to the new milestones in life, and you will unravel a lot of things in life, है ना? ह्यूमन लाइफ सिर्फ ग्रोथ, सक्सेस, फन, जॉय उसकी है, और वो फन जॉय आएगा ही नहीं जब तक हम मैड हाउस बन के रहेंगे। तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखना, तब मजा आता है ना? अब किसी वेकेशन पे भी जा रहे हैं, अब मैं 4 दिन बाहर थी, इतना मजा आया, यही अगर मेरा छठे सातवें दिन हो जाता ना, तो मुझे लगता है कि नो, माई वर्क आई एम नॉट गिविंग इट अ प्रायोरिटी, एंड माई लाइफ ऑल्सो। तो इतना ही है, मिठाई अगर खानी है तो वो आधा टुकड़ा ही मजा आएगा खाने में। अगर आपको आधा किलो दे देंगे तो आपको बदहजमी हो जाएगी, है ना? तो वो एक ही खाने में मजा आता है। कोई हलवा है तो 4 चम्मच है बस, उसमें बस 4 ही चम्मच खा के वो ही इंजॉय करो, है ना? वो पूरी कढ़ाई भर के खाने की उसमें जरूरत नहीं होती है, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर अस। तो इसीलिए लाइफ को थोड़ा सा सेंटर करके, अपने आप को सेंटर करके, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। जब वो इतने बड़े बड़े ऑथर, सेलिब्रिटीज कर सकते हैं, तो हमारी तो नॉर्मल लाइफ है ना? सो दैट इज हाउ इट इज।